Hi. Hi guys. So here today me Biplav along with me is Chainika, and today we'll be talking about this book. This book is named Mountain Beyond Mountains, and it is written by Tracy Keder. And this book talks about the life of Dr. Paul Farmer, who was a public health specialist, and he did a lot about the poor and deprived people, and we will talk about him and what is written in this book. Chainika, do you know about Dr. Paul Farmer? Yeah, so I have heard about Dr. Paul Farmer. This year only, like just after his death, I saw one video by the famous author John Green about Dr. Paul Farmer's work, and that was really inspirational. It was especially even more inspirational for me, from the point of public health, and really inspires us to be more like him and do more community work like that. Yes, Chanika, this book I started reading during my internship. Yeah. So actually, not exactly this book, but it was written by the same author. There is an adaptation for children or young readers. Yeah. So I first read that book and I got interested, and after that I thought कि ये तो बहुत अच्छा book है. I should read the whole book क्योंकि उसमें काफ़ी short या brief में दिया हुआ था. Okay. तो I then ordered this book and started reading it. So this book actually changed my whole perspective about community medicine and public health in general. जैसे कि हम पार्क में पढ़ते थे तो यार इतना बोरिंग लगता था. आई डोंट नो फैकल्टीज देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट रियली जिस तरीके से एमबीबीएस में कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाते हैं बहुत बोर लगता है. कुछ ऐसे पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं. A lot of people have a very wrong perspective about our subject, I feel, and this could be changed by reading more inspirational books where people have actually done the work which public health is about. For instance, this one or other. Paul Farmer has also written so many books, so that also. Yes. So actually, who was Paul Farmer? Paul Farmer was a medical graduate. He did his MD from Duke University, and he also had a degree in medical anthropology. So I think Chanika, I also started getting interested in anthropology, which is the study about humans. So there are physical anthropology, there is social anthropology. So physical anthropology talks about these bones and how they from excavation they find the this hominin, Homo erectus, all this. And social anthropology, cultural anthropology is about the languages, the culture. So how does it affect? So including anthropology in medical science, I think changes the perspective, and Absolutely, yes. And so Dr. Paul Farmer was a US doctor, बट ही हैड मतलब उनका काफ़ी जो फैमिली था वो मतलब ऐसे कैंप्स में या रूरल में काफ़ी जाया करते थे वो लोग. तो तभी से पॉल फार्मर का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया था. तो बेसिकली वंस उन्होंने जब अपनी डिग्री पूरी की उसके बाद वो हेटी इज़ ए सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो काफ़ी पुअर है, अंडर डेवलप्ड है. वहाँ जाके उन्होंने काम करना शुरू किया. तो बेसिकली जब उन्होंने देखा कि कैसे जो व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो होते हैं, जो हेल्थ एक ऐसा एंटिटी नहीं होता है कि इट्स इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द सोशल, सो देयर आर सो मेनी डायमेंशंस. तो वहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हुआ और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ डॉक्टर किम थे जो एक एशियन अमेरिकन डॉक्टर थे, उनके साथ मिल के उन्होंने पार्टनर्स इन हेल्थ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने फाइंड किया. जो कांजे एंड जामनी लसन थे, ये जो कुछ प्लेसेस हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया है. तो बेसिकली उनका वही है जो अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, उन लोगों के लिए काफ़ी उन्होंने किया है. तो चाइनिका, आपको क्या लगता है कि एज ए डॉक्टर हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है या जो जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स का क्या रोल होना चाहिए?
That is, matlab, to every doctor it will definitely be different. But I also feel कि मतलब जैसे what I heard was that when Paul Farmer wanted to work in a lot of very underdeveloped areas like Africa and all, so it was like from his own home place, like there was a lot of opposition. They used to say that no use, this is not our problem, and like that, and this can't be improved anyway, like that. But the thing is, like, health is such a thing that which is so interconnected. Matlab, it is like, especially for instance, infectious diseases, like if some underdeveloped places are having it, like it will spread, like it is all interconnected. Yes, You yes, cannot yes. say ki they are separate, we Yes, can't yes, like yes, give yes, them the yes, yes, healthcare as a. yes, yes. So recent pandemic of COVID and also some epidemics which happened in the Central Africa and monkeypox, all those Yeah. diseases are not localized to one area. So you cannot हाँ. say that कि ये तो उनका problem है, हमें इससे Yeah, क्या exactly, हमें इससे क्या मतलब exactly. है. And I do feel that कि there is an disparity between the health services Yes. in different countries. Yes. So you look at US and North America, and you look at the Europe, Yeah. and compare it with the Central Africa and the South Asia. Yes, yes. So you will see that there is great disparity in the healthcare services, and I believe कि health is the basic human right, along with food, cloth and shelter. So yeah, the rich countries have their insurance system and they have their funds, but when it comes to poor countries, they are not been able to provide universal health coverage to all the people. So I do feel that कि it is the responsibility of the rich or well off. जैसे कि हम काफ़ी वेल ऑफ हैं, हम बोल सकते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ. तो डेफिनेटली ये बुक जो है पॉल फार्मर का, ये काफ़ी इंस्पायरिंग है. डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, he went to the poor countries like Haiti in Central America, and also he went to Central Africa like Rwanda and Sierra Leone, and Russia also. So Russia also, I yes, didn't yes, know about yes, that. yes, yes. He went to Russia also. You may be saying कि Russia तो काफ़ी developed है, but there are exactly. other problems also वहाँ पे भी. We will War. come, yeah, we will come to that. So first let's talk about कि what do you think is the major जो है, जो if you compare poor countries में कौन कौन से diseases जो हैं वो होते हैं ज़्यादा. So yes, like compared to rich countries, like poor countries have बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे उनमें infectious diseases and deficiency disorders. So which is in stark contrast with मतलब more affluent countries where lifestyle diseases and congenital diseases predominate. And it's so sad, मतलब infectious diseases and deficiencies are things that could just be मतलब improved by good public health facilities, prevention. यस, सो बेसिकली जो पॉल फार्मर थे, उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे आप तुमने बोला कि टीबी और HIV एड्स, और ये पहले की बात है, ये उस ज़माने की बात है. आज के ज़माने में हमारे यहाँ डॉट्स है और ART है, बट ये उस ज़माने की बात है जब 90s में शुरुआती दौर में HIV एड्स प्रिवलेंट मतलब डिटेक्ट किया हुआ था. फिर उसके बाद TB का भी काफ़ी प्रिवलेंस था. सो इट वाज वेरी मतलब जो मेडिसिन थे, इट वाज वेरी कॉस्टली और उतना अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी. तो डॉक्टर पॉल फार्मर और उनकी जो टीम है, उन्होंने काफ़ी इसमें एफर्ट लगाए कि जो HIV की जो कॉस्टली दवाइयाँ हैं, वो भी गरीब लोगों तक, जो अफ्रीका या सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं, उन तक पहुँच पाए. TB में देखोगे MDR TB वो काफ़ी प्रिवलेंट था, और उसमें काफ़ी सोशल फैक्टर भी बहुत सारे आते हैं. न्यूट्रिशन आता है, हाइजीन आता है, सैनिटेशन आता है, बहुत चीज़ों को लेके, या तो ये चीज़ें काफ़ी प्रिवलेंट थी. और इसमें डॉक्टर पॉल फार्मर ने काफ़ी एफर्ट लगाया, और WHO का एक ग्लोबल फंड बनाना पड़ा, जिसमें उनको एड्स के लिए जो दवाई है उनको देना पड़ा. पर्टिकुलरली इसमें यूनाइटेड स्टेट का काफ़ी ज़्यादा रोल था. और डॉक्टर पॉल फार्मर, उनका ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनर्स इन हेल्थ, उसने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ विच आर पुअर लाइक सेंट्रल अमेरिका या सब सहारन अफ्रीका या साउथ एशिया, तो वहाँ पे
इन्फेक्शस डिजीज़ पे काफ़ी काम करना अभी भी बाकी है, दो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहे हैं इवन रूरल में, बट अभी भी इन्फेक्शस डिजीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें करना ज़रूरी है. Even deficiencies actually, like right now we are working in an urban slum area and वहाँ पे मतलब it is quite striking कि कितना ज़्यादा malnutrition and rickets के cases अभी तक भी है. So मतलब these are like low hanging fruit which we can मतलब eliminate very fast with very little effort. We can मतलब try and stop these things without the need of like increasing specialization, like Yes. like grassroots workers, public health doctors, general practitioners, we can all make an effort and like eliminate these things. Yes. So छानिका, और एक बात है कि इस बुक में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने जब भी वो कम्युनिटी में जाते थे या जो उनके जो कांजे हुआ या फिर जो हैटी के जो सिटीज़ थे या जो भी स्लम्स थे वहाँ जाते थे, तो ही वाज नॉट लाइक कि प्रिटेंडिंग टू बी ए आउटसाइडर एंड डूइंग समथिंग, या उनको कि भाई मैं तो भाई डेवलप्ड कंट्री से हूँ, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता. इट्स नॉट लाइक दैट. ही वॉज ए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सो वो काफ़ी सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी लेके चलते थे. सो व्हेन यू गो टू ए कम्युनिटी विच हैज़ डिफरेंट बिलीव्स, हाँ ये बात दिस इज़ ट्रू दैट जो भी सुपरस्टिशन है उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए, बट देर आर गुड थिंग्स इन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कम्युनिटी. सो उनको साथ में लेके चलना है. जैसे कि लिबरेशन थियोलॉजी है जो क्रिश्चियन का है, उसको भी ही वॉज ए वेरी डिवाउट क्रिश्चियन ऑल्सो, एंड ऑल्सो जो वुडू उनका जो कुछ रिचुअल्स है उसको लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जहाँ पे कम्युनिटी के साथ हम जाते हैं और उनके कल्चर्स को एक्सेप्ट करके उनमें कोई भी इंटरवेंशन है या फिर कोई भी उनके जो एजुकेशन एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं. तो आई वुड से कि पॉल फार्मर और उनकी टीम काफ़ी अच्छी रही, जो मतलब जब कम्युनिटीज़ में जाती है तो उनकी जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करके ही वो कोई इंटरवेंशन वहाँ पे करते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, विच इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज वी कैन नॉट गो एज ए आउटसाइडर एंड जस्ट टेल देम कि दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग. Because then they won't listen. मतलब वो ये approach होता है कि मतलब you have to talk like them and make them understand. Yes. And Paul Farmer had a team, Dr. Kim the, and he had a girlfriend Ophelia, and they were also very much helpful. जो भी उनके जो भी public health interventions होते थे, public health उनके जो programs होते थे उसमें काफ़ी उन्होंने मदद की. So I would say that कि Paul Farmer इतने अच्छे affluent family से होते हुए भी he went to the community, into the poor countries, and उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. Partners in Health में जैसे John Green, their group has also contributed a lot, and most of their donations also go into that. We will also leave a link, right? There are ways to donate to Partners in Health, and they are doing a lot of work for maternal and child health care in Sierra Leone. अभी हम कुछ बुक्स के कुछ पार्ट्स आपको पढ़ के बताएंगे. मेरे पास एक्चुअली इसका हार्ड कॉपी तो है और साथ ही साथ इसका किंडल एडिशन भी है. सो मैं कुछ लाइंस बताना चाहूँगा जो मैंने खुद नोट्स किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं बुक के. वन ऑफ द लाइन इज़ दैट कि एजुकेशन वाजंट व्हाट ही वांटेड टू परफॉर्म ऑन द वर्ल्ड, included me, he was after transformation. So this is for Paul Farmer के बारे में ट्रेसी किडस बता रहे हैं. हाँ, और एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप लोग में से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाते होंगे वर्चुअल ट्रायड्स या जो भी और भी क्या टर्म्स होते हैं. शानिका तुम्हें याद है जब हमने MBBS में पढ़ा था समथिंग रिलेटेड टू वर्चुअल, देयर वाज वर्चुअल ट्रायड आई थिंक, एक था पैथोलॉजी में या और वर्चुअल से रिलेटेड. तो हम लोग साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड चीज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन उनके बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं पढ़ते. तो पॉल फार्मर का काफ़ी जो इंस्पिरेशन है वो रुडोल्फ वर्चो, उनसे काफ़ी वो इंस्पायर्ड थे. एक लाइन है, मेडिकल एजुकेशन डज नॉट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए वे ऑफ मेकिंग ए लिविंग बट टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. द फिजिशियंस आर नेचुरल अटर्नी ऑफ द पुअर एंड द सोशल प्रॉब्लम्स शुड लार्जली बी सॉल्व्ड बाय देम. हाँ, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है इसमें, इफ़ डिजीज़ इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन
then epidemics must be indicative of mass disturbances of mass life. छानिका, तुम्हें ये लाइन समझ में आया? नहीं, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन। या तो अगर हम ये सोचते हैं कि एक डिज़ीज़ एक इंसान में होता है तो मतलब एक इंडिविजुअल लाइफ तो वो अफेक्ट होता है जब एक डिज़ीज़ होता है। तो अभी अगर तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिस्टर्बेंसेस हो रहा है एक इंडिविजुअल लाइफ का। जब एपिडेमिक्स होता है देन इट कॉजेज ए मास डिस्टर्बेंसेस। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जैसे हम कम्युनिटी डायग्नोसिस करते हैं। यस। ओके, सो जैसे कि पता है कि डॉक्टर पॉल फार्मर सेंट्रल अफ्रीका में भी काफ़ी काम किया था। उनमें से एक कंट्री है रवांडा। सो रवांडा इज़ ए कंट्री विच वेंट थ्रू सिविल वॉर। वहाँ पे 2 एथनिक ग्रुप्स जैसे जो नेम थे हुत्सू एंड तुत्सी, दे वर द डिफरेंट एथनिक ग्रुप जिनके बीच में फाइट हुआ, काफ़ी बड़ा जिनोसाइड भी हो गया। तो व्हेन अ कंट्री, जैसे कि वॉर होता है, वो कभी भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता और हेल्थ वाइज तो काफ़ी अच्छा नहीं होता। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं जो क्या हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे औरतें होती हैं और बच्चे होते हैं, वो तो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जो NGOs होते हैं जैसे पार्टनर्स इन हेल्थ है या फिर और एक है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, MSF, या जो फ्रेंच में मेडिसिन एंड फ्रंटियर्स जो होते हैं, उन्होंने वो काफ़ी काम करते हैं। सो दिस ऑल्सो आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट रवांडा में जो हुआ द जेनोसाइड, सो अभी भी जैसे चल रहा है सीरिया में और इराक में, यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है, तो इससे काफ़ी हेल्थ एस्पेक्ट्स को, काफ़ी हेल्थ जो सर्विसेज है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है। तो पॉल फार्मर ने भी जब रवांडा और आई थिंक सियरा लियोने, अच्छा सियरा लियोने आई थिंक ऑल्सो वेंट विथ ए सिविल वॉर आई गेस। yes. So when there is a civil war, it causes a lot of disruption और हेल्थ केयर सेक्टर तो काफ़ी अफेक्टेड होता है। सो वॉर कभी भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। और हेल्थ वाइज तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। जो हेल्थ केयर डिलीवरीज होते हैं काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। तो छानिका, डू यू थिंक कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल फार्मर ने जो किया है, उनका अप्रोच है, वो क्या रेप्लिकेबल है या दूसरे लोग भी कर सकते हैं उनकी तरह अप्रोच लेके? हाँ बिल्कुल, आई फील लाइक we can all go and work in the community, and of course it depends from community to community, and as you said कि उनके culture के साथ मतलब we have to talk to them like an insider, and like we can all try in our own disadvantaged communities and improve healthcare, especially like these infectious diseases and deficiencies. We can work on these. Okay, nice. एंड मैं रुडोल्फ वर्चो के बारे में बात कर रहा था, तो उनके काफ़ी अच्छे ये हैं। सो फार्मर काफ़ी इंस्पायर हुए रुडोल्फ वर्चो के जो एक जिन्होंने सेल थ्योरी को फाउंड किया और जो एक पाइनियर थे इन द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिसिन। सो वर्चोस का अप्रोच था कि कैसे हम बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स तीनों को मिला के हम अप्रोच रखेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी सिविल वॉर की बात है, तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कि आप डॉक्टर हो और बोलोगे इसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू इंक्लूड द पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड ऑल्सो द, जैसे मैंने बोला, एंथ्रोपोलॉजी, जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनका साइकोलॉजी, उनके कस्टम्स, उसको समझ के वहाँ पे इंटरवेंशन करना, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और एक इंटरेस्टिंग कोट है उनका, गिविंग पीपल मेडिसिन फॉर TB and not giving them food is like washing your hands and drying them in dirt. So ये बात समझ में आई छानिका? हाँ एकदम, मतलब हाँ, that is the thing, मतलब it is not, सारा चीज़ इंटरलिंक्ड ही है। we cannot just give treatment and expect कि अपने आप ठीक हो जाएगा, like without, if they are not getting enough food and all, like even malnutrition for instance, like it's all interlinked, social conditions, political conditions, सब चीज़ समझ के काम करना पड़ेगा। ओके छानिका, मैंने तो ये बुक ट्रेसी किडर्स के द्वारा पढ़ी है। आपने कुछ पॉल फार्मर की कुछ बुक्स पढ़ी हैं? हाँ, बेसिकली
Paul Farmer has many really good books as it happens. As a डॉक्टर के साथ साथ वो एक बहुत proficient और अच्छे writer भी थे. And his numerous books include books on some books on his work on HIV. They are more like memoirs. Some books on his work on TB, and he has also worked during the Ebola epidemic in Africa. So that was one book that I did read, and it's called Fevers, Feuds and Diamonds. I mean, I have started reading it, but I haven't completed it yet. But it still has affected me profoundly. मतलब उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी. So he was like, he brings up one question in the book कि मतलब you know, like we see that often it is like some pandemics are originating from some specific places. So it is like this was before the COVID pandemic and everything. Like at that time जैसे Ebola चल रहा था, Zika, Nipah. So he was like, pandemics are originating from some places, and those who are outside ना, they frequently like blame it on the culture कि हाँ उनका ये voodoo rituals हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहे हैं. But then he is like, he actually tells the story of मतलब Ebola कैसे spread हुआ. Yes. And he is like, मतलब it took such a long time for doctors to notice it because primary healthcare is so poor out there. मतलब ऐसा है कि मतलब it was noticed after quite a few months क्योंकि doctors है ही नहीं उस area में. They are just going to traditional healers and all that because most of them are so poor कि उधर doctors है ही नहीं. So he is like, it is the lack of primary health care which actually creates the birth of all these epidemics and pandemics. ये छानिका तुमने काफ़ी अच्छी बात बोली और ये बुक पढ़ने के बाद इसका मेरे पास किंडल एडिशन भी है. सो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे सबसे मेन चीज़ मुझे लगा क्योंकि ऑनेस्टली मेरा भी था कि यार हम तो डॉक्टर हैं, सिर्फ जाके क्लिनिक में बैठेंगे, एक दो पेशेंट्स को देखेंगे, वो होता है. बट मैंने सोचा कि भारत का जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिनारियो है, अगर हम उसको टैकल करेंगे तो क्लिनिक में बैठ के तो नहीं कर सकते. या जो भी प्रॉब्लम है क्लिनिक में कितने लोगों को हम ठीक करते हैं, एक या दो लोग या कुछ भी जो भी आते हैं अपने क्लिनिक्स में, जो भी आते हैं उनको हम इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीटमेंट देते हैं. yes. जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे एपिडेमिक्स होती हैं, कॉलेरा की एपिडेमिक्स होती हैं, मलेरिया की भी होती हैं, डेंगू की होती हैं. तो उनमें ऐसा हम इंडिविजुअलों को अगर मान लीजिए उनकी ट्रीटमेंट कर भी लिए, हमने उनको दे दिया आर्टिसोनेट दे दिया, या हमने उनको डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया, या हमने उनको जो भी सेफिक्सिम दे दिया, मान लीजिए जो भी टैबलेट्स हैं उनको दे दिया, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं. बट क्या हम उनकी जो ओरिजिन ऑफ द डिजीजेस पे जा रहे हैं कि क्यों हुआ ये एपिडेमिक, कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ का पानी वो कैसे पीते हैं, क्या वो क्या वो साफ है, और वहाँ पे मच्छर कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मच्छर, कहीं उनका तो पानी तो वहीं जमा नहीं हो रहा है, या क्यों उनका इतने बड़ा एपिडेमिक्स हो रहा है. तो ये मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर का काफ़ी रोल रहता है. हम काफ़ी हद तक यूएस का जो पॉलिसी है या यूएस का जो मेडिकल अप्रोच है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ओवर स्पेशलाइजेशन की ओर जा रहा है. हमें काफ़ी जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी काफ़ी ज़रूरत है जो सब डिजीज़ेस को कवर कर सकें और बेसिक मेडिसिन में भी आ सकें, जो पब्लिक हेल्थ में भी काम कर सकें. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक पढ़ने के बाद काफ़ी बात पता चला कि प्राइमरी हेल्थ एक हमें स्ट्रेंथन करना है. हमें अगर इंडिया का जो हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वी डेफिनेटली शुड थिंक अबाउट द प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ को कैसे स्ट्रेंथन करें. यस, टर्शरी हेल्थ में भी काम करना है, आपको बड़े बड़े अस्पताल भी बनाने हैं, बट जो रूरल में है, जो छोटे शहरों में है, उन हॉस्पिटल को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि पेशेंट्स को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए दूर भी जाना ना पड़े, या जो बेसिक ट्रीटमेंट है एटलीस्ट वहीं पे ही उनको मिल जाए. तो और उसी के साथ हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के भी काफ़ी ज़रूरत है. जैसे मैंने बोला कि हेल्थ इज़ काफ़ी उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, सब डिटर्मिनेंट्स को हमें लेके चलना है और उसको हमें सॉल्व करना है. जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको हमें सॉल्व करना है. तो प्राइमरी हेल्थ केयर का यहाँ पे काफ़ी रोल मुझे लगता है. Ultimately, it's not like we cannot treat just a single organ या फिर a single system. We have to treat the person and the community. So that is where the role of public health lies, and that is what he said. Like कि pandemics and all, like the problem started much before the pandemic because public health was so poor out there.
सो हमने इस बुक के बारे में बात किया एंड वी टॉक्ट अबाउट इट. होप आपको ये पसंद आया होगा. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ और इंटरेस्टेड इन पब्लिक हेल्थ, प्लीज़ read this book. And I bought it from Amazon and it is available in Flipkart also, so I will be posting the link in the description. And also there is a Kindle edition which is little cheaper. You can watch it in your Kindle or your tablet or on your mobile. So I will be posting both of the link in the description. So thank you for your watching. Thank you, Shainika. Thank you, Biplab.